ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کے دورہ پاکستان کا دوسرا روز معزز مہمان کی لاہور آمد، مزار اقبال پر حاضری، پھول رکھے، فاتحہ خوانی کی۔ معزز مہمان کو مزار اقبال پہنچنے پر گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ میڈیا سے گفتگو میں ایرانی صدر کا کہنا تھا، دونوں ملکوں کا رشتہ وقت کے ساتھ ساتھ مزید مضبوط ہوگا۔ میری خواہش تھی پاکستان میں عوامی اجتماع سے خطاب کرتا۔ غزہ سے متعلق اصولی موقف پر پاکستان کو سراہتے ہیں۔ اس جنگ میں فلسطینی مسلمان فاتح ہوں گے۔ ایرانی صدر کی گورنر ہاؤس میں گورنر پنجاب اور وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف سے الگ الگ ملاقاتیں۔ پنجاب اور ایران کے درمیان وفود کے تبادلے اور مشترکہ بزنس کونسل بنانے پر بات چیت۔ ایرانی صدر کی وزیر اعلیٰ پنجاب کو ایران کے دورے کی دعوت۔ گورنر ہاؤس میں معزز مہمان کے اعزاز میں ظہرانے کا اہتمام۔ ایرانی صدر کی لاہور آمد پر وزیر اعلیٰ پنجاب نے استقبال کیا۔ لاہور میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات، میٹرو بس سروس بند۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی آج کراچی بھی جائیں گے۔ گورنر اور وزیر اعلیٰ سندھ سے ملاقاتیں شیڈیول۔ معزز مہمان مزار قائد اور دیگر اہم مقامات کا بھی دورہ کریں گے۔ جامعہ کراچی کی طرف سے ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری بھی دی جائے گی۔ ایرانی صدر کو خوش آمدید کہنے کے لیے شہر میں بینرز آویزاں۔ سیکیورٹی وجوہات پر سحپہر 3 سے شام 5 بجے تک مختلف سڑکیں بند رہیں گی۔ شاہراہ قائدین سے گرو مندر جانے والی شاہراہ بند۔ ایم اے جناح روڈ کی سڑکوں اور گلیوں کو بھی سیل کر دیا گیا۔ امریکہ کا ایران سے تجارتی معاہدوں پر پابندیوں کے خطرے سے آگاہ رہنے کا مشورہ۔ واشنگٹن میں پریس بریفنگ کے دوران امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر کا کہنا تھا، پاکستان کے خلاف ممکنہ پابندیوں کا جائزہ نہیں لے رہے۔ امریکہ پاکستان کی سب سے بڑی برآمدی منڈی اور اس کے بڑے سرمایہ کاروں میں سے ایک ہے۔ پاکستان کی اقتصادی کامیابی دونوں ممالک کے مفاد میں ہے۔ ہم اپنی شراکت کو جاری رکھنے کے منتظر ہیں۔ لاپتہ افراد کے 10,000 میں سے 8,000 کیسز حل۔ بلوچستان میں 2700 میں سے 2200 لاپتہ افراد بازیاب ہو چکے ہیں۔ لاپتہ افراد سے متعلق سپریم کورٹ میں جمع کروائی گئی رپورٹ کے مطابق بلوچ کالعدم تنظیمیں اپنے کارندوں کے نام لاپتہ افراد کی فہرست میں لکھواتی ہیں، جو بعد میں کسی نہ کسی دہشت گرد کارروائی میں مارے جاتے ہیں۔ شرپسند عناصر نے لاپتہ افراد کے نام پر عوام میں غلط فہمیاں پیدا کی۔ حکومت کو ذمہ داریوں کا مکمل احساس ہے۔ لاپتہ افراد پر کافی کام کیا۔ کئی دہائیوں کا معاملہ راتوں رات حل نہیں ہو سکتا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی پریس بریفنگ۔ کہتے ہیں پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بھاری قیمت ادا کی۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ بولے، مسنگ پرسنز کے حوالے سے صرف 23% کیسز باقی ہیں۔ لاپتہ افراد کے 7,000 سے زائد کیسز حل ہو چکے۔ دہشت گردی میں شہداء کے لواحقین کے بہت تحفظات ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے خط کے معاملے پر اہم پیش رفت۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق نے فل کورٹ اجلاس طلب کر لیا۔ ذرائع کے مطابق اجلاس آج دن 2:30 بجے بلایا گیا ہے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے آفس میں تمام ججز سے تجاویز مانگی تھی۔ IMF is known as lender of the last resort for a reason. There is no plan B. We will be over $9 billion and by the time we end June. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب معاشی بحالی کی خوشخبری سنا دی۔ اسلام آباد میں بزنس سمٹ سے خطاب میں بولے، IMF اس ماہ کے آخر میں قسط جاری کر سکتا ہے۔ IMF قرض کے لیے آخری راستہ ہوتا ہے، کوئی پلان ہی بھی نہیں ہوتا۔ عالمی مالیاتی ادارے سے طویل المدتی پروگرام پر جون جولائی میں معاہدہ ہونے کی توقع ہے۔ نقصان میں چلنے والے سرکاری اداروں کی نجکاری ضروری ہے۔ جون تک زیر مبادلہ کے ذخائر 9 سے 10 ارب ڈالر تک پہنچ جائیں گے۔ حکومتی اقدامات کے باعث ٹیکس وصولی میں اضافہ اور کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کم ہوا۔ زیر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ ہوا۔ مالی سال میں GDP میں اضافے کی توقع ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ٹیکس کیسز میں دانستہ التوا کا نوٹس۔ چیف کمشنر ان لینڈ ریونیو اسلام آباد اور ان کے ساتھ متعلقہ تمام افسران معطل۔ انکوائری کا حکم۔ کہتے ہیں قومی خزانے کے سینکڑوں ارب قانونی تنازعات کا شکار ہیں۔ اس حوالے سے کسی بھی قسم کی لاپرواہی اور کوتاہی قبول نہیں کروں گا۔ عوام سے کیے گئے عہد کے تحت ٹیکس نظام میں اصلاحات کی خود نگرانی کر رہا ہوں۔
मुल्क व कौम की एक एक पाई बचाने और महसूलात में इजाफे के लिए दिन रात मेहनत करना होगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का बुशरा बीबी की सेहत पर तशवीश का इजहार। कहते हैं बानी चेयरमैन की अहलिया बुशरा बीबी की दौरान कैद बिगड़ती सेहत बेहद तशवीशनाक और नहायत संजीदगी की मुतकासी है। रात गए एम्बुलेंस की बनी काला आमद के हवाले से भी तमाम तर तफसीलात को मुख्फी रखा गया। हुक्काम बाला को मुतरब्बा करते हैं कि बुशरा बीबी की सेहत और सलामती के जिम्मे आप पर आयद होती है। बानी चेयरमैन की बहन अलीमा खान बोली, बानी पीटीआई डील के लिए तैयार नहीं, कानून से तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलेगा तो बड़ी मुश्किलात होंगी। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक बुशरा बीबी की सेहत ठीक है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने वाज़ेह कर दिया। कहते हैं बुशरा बीबी की सेहत के बारे में सोशल मीडिया पर झूठी मुहिम चलाई गई। ज़िमनी इलेक्शन पर बोले, पाकिस्तानी कौम ने मनफी और नफरत अंगेज़ बयानिया मुस्तरद कर दिया है। ज़िमनी इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून ने क्लीन स्वीप किया। मुल्क तरक्की की जानिब गामजन है। स्टॉक मार्केट माजी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। कल इलेक्शन नहीं, रियासती दहशतगर्दी हुई। पीटीआई रहनुमा असद कैसर की मैनचेस्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। हुकूमत जाली करार देते हुए बोले, हुकूमत की मुल्की मसाइल हल नहीं कर सकती। इलेक्शन के बाद इस्तेहकाम आता है, पहला इलेक्शन जिसके बाद अदम इस्तेहकाम बढ़ा है। मुल्की मईशत के हालात ख़राब हैं। वज़ीर ख़जाना कशकोल लेकर दुनिया भर में जा रहा है। चेयरमैन पीटीआई को कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे और ना ही किसी के दबाव में आएंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बनने के बाद से तनाज़ात का शिकार है। जेल में मौजूद कैदी की मर्जी से सूबा चल रहा है। अपोजिशन लीडर इबादुल्लाह की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा, सूबाई काबीना ने गैर आइनी तौर पर अप्रैल का बजट मंजूर किया। हुकूमत पार्लियामेंट की बेतौकीरी कर रही है। ये गालम गलोच ब्रिगेड है, ये ऐसे ही हुकूमत चलाते हैं। वज़ीर आला रात को बढ़के मारते हैं, दिन को पाँव पकड़ कर माफ़ियाँ मांगते हैं। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी नैब से नाला। अदालत पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में बोले, 2-3 साल और गुजरे तो नैब से हमें पेंशन लेना पड़ेगी। 18 साल में पेंशन हो जाती है, 14 साल हो गए हैं। पहले एक नाकाम हुकूमत थी, दुआ करेंगे अल्लाह इन्हें हिदायत दे। पेशगोई करने वालों की हालत आपने देख ली। बिजली और पेट्रोल की कीमतों में कमी के लिए मेहनत और फैसले करना होंगे। सोने की बढ़ती कीमतों को रिवर्स गियर लग गया। कीमत में 7800 रुपए की बड़ी कमी, 2,40,900 रुपए का फी तोला हो गया। दूसरी तरफ स्टॉक मार्केट में मिला जुला रुझान। मार्केट कभी मस्बत तो कभी मनफी में जाने लगी। इंडेक्स में 100 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 71,503 पॉइंट्स पर ट्रेड हो रही है। दूसरी तरफ इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में उतार चढ़ाव जारी। पाकिस्तान में महंगाई बुलंद तरीन सतह पर है। गुर्बत का खात्मा भी तरजीह होनी चाहिए। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी का इस्लामाबाद में बिजनेस समिट से खिताब। कहते हैं, मुल्क में फरवरी 2024 के इलेक्शन के बाद वो सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सका जिसकी तवक्को की जा रही थी। सियासी कुव्वतों को आपस में मुज़ाकरात करने चाहिए। हमें सिक्योरिटी के मसाइल भी दरपेश हैं। सियासी कुव्वतों को आपस में मुज़ाकरात करने चाहिए। सिक्योरिटी के मसाइल ना सिर्फ अंदरूनी हैं बल्कि बैरूनी भी हैं। गजा में जंग का खात्मा दुनिया की अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। पाकिस्तान में इंसानी हुकूक के मामलात में कोई तब्दीली नहीं हुई। गैर कानूनी और मावराए अदालत हलाकतों के शवाहिद मौजूद हैं। अमरीकी महकमा खारजा की ज़ेली कमेटी के इंसानी हुकूक से मुताल्लिक़ रिपोर्ट में इल्ज़ामात। रिपोर्ट में कहा गया, सियासी कारकुनों और उनके अहल खाना पर तशद्दुद के शवाहिद मौजूद हैं। अस्करी तंजीमें और गैर रियासती अनासर तशद्दुद में मुलव्वस हैं। इन अनासर की कार्रवाइयाँ लाकानूनियत का बायस हैं। हुकूमत ने इंसानी हुकूक की बेहतरी के लिए खातिर ख्वाह इक़दामात नहीं किए। IG इस्लामाबाद सैयद अली नासिर रिजवी का सेफ सिटी का दौरा, मुख्तलिफ सेक्शंस का दौरा किया। कहते हैं, इस्लामाबाद में वर्चुअल पुलिस स्टेशन का क़याम अमल में लाया जाएगा। ख़वातीन के लिए विमेन सेफ्टी ऐप लॉन्च करेंगे। साइबर क्राइम विंग की सलाहियत को बढ़ाया जाएगा। पुलिस के लिए वायरलेस पैगाम में IG इस्लामाबाद का कहना था, हम सब मिलकर इस शहर को अमन का गहवारा बनाएंगे। इस्लामाबाद पुलिस शेरों की और प्रोफेशनल पुलिस फोर्स है। आपसे तवक्को है कि आप 100% अलर्ट होकर ड्यूटी करेंगे।
मगरबी हवाओं की एक बार फिर पाकिस्तान में एंट्री। महकमा मौसमियात की 29 अप्रैल तक बादल बरसने की पेशगोई। 27 अप्रैल तक बलोचिस्तान में मूसलाधार बारिश मुतवक्के है। 25 से 29 अप्रैल के दौरान खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद, मरी, गलियात समेत पंजाब के मुतादिद मकामात पर मूसलाधार बारिश मुतवक्के। लाहौर में सुबह सवेरे बादलों की इनिंग्स, मुख्तलिफ मकामात पर जालाबारी ने मौसम का हुस्न दुबाला कर दिया। शिमला पहाड़ी, लक्ष्मी चौक, ग्वाल मंडी, करतबा चौक, डेविस रोड, मॉल रोड पर बादल बरस पड़े। गजुमता, इस्लामपुरा, बंद रोड, अनारकली, शालामार बाग, मॉडल टाउन और दीगर इलाकों में रिमझिम। मुरीद के शेखुपुरा, जड़ांवाला और दीगर शहरों में भी बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे आब, कई इलाकों में फीडर स्ट्रिप होने से बिजली बंद। चीन में माहौलियाती तब्दीलियों के असरात कबल अज़ वक्त 2 से 3 गुना ज़ायद बारिशों ने मुल्क के जनूबी इलाकों में तबाही मचा दी। ग्वांगडोंग में सैलाबी सूरत हाल है। मुख्तलिफ वाक़यात में 4 अफराद हलाक, 10 ज़ख्मी हो गए। ख़राब मौसम के बाइस अंदरून मुल्क परवाज़ें मनसूख कर दी गईं। बैनुल-अक़वामी परवाज़ें ताख़ीर का शिकार। बारिशों का सिलसिला अप्रैल के आखिर तक जारी रहने की पेशगोई। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो है पाकिस्तान का नाम रोशन किया, बलूचिस्तान से निकल के इतने बड़े लेवल पे जाके एज अ टीम कैप्टन पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना और जो है फर्स्ट राउंड में ही फिनिश करना, मतलब ये बहुत ही बड़ी बात है अल्लाह पाक की तरफ से। हुकूमत कौमी हीरोज़ को सपोर्ट करे। इंडिया को दुबई में शिकस्त देने वाले मार्शल आर्ट्स खिलाड़ी शाहज़ेब रिंद की कोयटा में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कराटे कॉम्बैट में इंडियन हरीफ को पहले राउंड में शिकस्त दी। दुनिया में दूसरी पोजीशन पर हूँ, नंबर 1 बनना हदफ है। कौमी खिलाड़ी के वालिद का सूबाई हुकूमत से हौसला अफजाई न करने का शिकवा। डीजी स्पोर्ट्स आसिफ लांगू ने इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। कहा, हुकूमत नौजवानों की हौसला अफजाई कर रही है। और इस्लामाबाद में 3 रोज़ा किताब मेला सज गया। डायरेक्टर जनरल ICT ने किताब मेले का इफ्तिताह किया। डायरेक्टर जनरल मुख्तलिफ बुक स्टॉल्स का भी दौरा किया। लाइब्रेरी डिपार्टमेंट के अफसरान को महकमे की बेहतरी के लिए हिदायत दी। किताबी मेले का मकसद बढ़ने के रुझान को फ़रोग़ देना है।